منطق میں ہم نے پچھلے لیکچر میں وحدت ثمانیہ، قضیہ شرطیہ، تناقض، یہ ساری چیزیں دیکھی تھی۔ تناقض جو دو قضیوں سے مل کر کے بنتا ہے، اس میں سے ایک قضیہ یا تو جھوٹا ہوگا یا سچا، دو قضیہ ہوں گے، ایک سچا ہوگا اور ایک جھوٹا ہوگا۔ اس طرح سے دو قضیے رہتے ہیں، اور اس میں ایک چیز ہے وحدت ثمانیہ۔ تناقض کی 8 قسمیں کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے وحدت ثمانیہ۔ وہ 8 قسمیں موضوع، محمول، مکان، زبان، قوت و فعل، شرط، جزء کل اور اضافت ہے۔ آج ہم عکس دیکھیں گے۔ عکس کا مطلب ہوتا ہے الٹا۔ ایک اپوزٹ ہوتا ہے، اور یہ عکس کا مطلب اپوزٹ نہیں ہے، الٹا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا عکس کچھ بھی لکھ رہے ہیں، اس کا عکس اگر میں نکالوں گی، ہے نا، اس کو اگر پانی کے اوپر اس طرح سے بک میں رکھ کے، بک پہ لکھ کے اگر آپ اس طرح سے پانی نیچے دکھاؤ گے تو اس کا عکس دکھے گا۔ عکس کیا دکھے گا کہ یہ الف اس طرح سے ہوگا اور لام ادھر اور اس طرح سے الٹا ایسا دکھے گا۔ یہ لام، یہ والا لام ادھر آ گیا اور یہاں پہ کھڑا الف، یہ ہوتا ہے عکس۔ عکس کے معنی الٹے کے ہوتے ہیں، ہے نا، الٹا۔ الٹا ہوتا ہے منطق میں ایک قضیے کے اجزاء، ایک قضیے کے اجزاء ایک قضیے کے اجزاء کے الٹنے کو عکس کہتے ہیں۔ یعنی قضیہ کے پہلے جز، جو بھی ہم قضیہ لکھیں گے، اس کا جو پہلا جز جسے موضوع کہتے ہیں، اس کو دوسرے جز کی جگہ الٹ دیں گے، یہ ہو جائے گا اس کا الٹا۔ اگزامپل دیکھ لو، جیسے ہر انسان جاندار ہے، اس کو الٹ سکتے ہیں، ہر انسان جاندار ہے۔ اب اس میں سے جو ہر ہے یہ کیا ہے؟ موضوع ہے۔ دوسرا محمول کیا ہے؟ جاندار، ہر انسان محمول ہے، تو یہاں پر میں لکھوں گی ہر کی جگہ پہ سارے تو نہیں آئیں گے، بعض آئے گا، کیونکہ سارے انسان پھر جاندار نہیں ہو سکتے، سارے جاندار انسان نہیں ہو سکتے، تو بعض جاندار آئے گا، یہ محمول ہے۔ اب یہ کہاں جا رہا ہے؟ اس موضوع کی جگہ پہ، انسان، موضوع، جاندار، بعض جاندار انسان ہیں۔ اب عکس جو ہے، عکس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عکس مستوی اور دوسرا ہے عکس نقیض۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، اور یہ عکس بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلی قسم ہے اس کی عکس مستوی، دوسری قسم ہے عکس نقیض۔ اب عکس مستوی دیکھتے ہیں۔ عکس مستوی کیا ہے؟ سیدھا عکس۔ عکس مستوی جو ہے اسٹریٹ، سیدھا عکس، کوئی گھماؤ پھراؤ نہیں ہوگا اس میں۔ اس میں کسی قضیے کے پہلے جز کو، ایک قضیہ ہے، قضیہ کا مطلب کوئی سینٹینس، جیسے حامد کھڑا ہے، اس کا جو پہلا جز ہے اس کو دوسرے جز کی جگہ رکھیں گے اور دوسرے جز کو پہلے جگہ پہ رکھ دیں گے، اسے ہی ہم کہہ دیں گے عکس مستوی، وہاں پہ عکس مستوی بن جائے گا۔ یعنی موضوع اور محمول ہے، اس کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے اور موضوع کو محمول کی جگہ پہ رکھیں گے،
जो कजिया निकल के आएगा नया, उसे ही अक्स मुस्तवी कहा जाएगा। और ये उलट फेर इस तरह होता है कि अगर पहला कजिया, इसका उलट फेर भी इस तरह होना चाहिए कि अगर जो आप पहला कजिया है वो सच्चा है तो दूसरा कजिया भी सच्चा होना चाहिए, झूठा नहीं। अक्स का मतलब है सिर्फ उसकी जगह चेंज होना, सच या झूठ नहीं बदलना। अगर वो सच है तो दूसरा भी क्या होगा, सच रहेगा। दोनों कजिए सच्चे होंगे या तो फिर झूठे होंगे। पहला कजिया सच्चा है तो दूसरा भी सच्चा, दूसरा, और पहला कजिया अगर झूठा है तो दूसरा कजिया भी झूठा होगा। इस तरह पहला कजिया जो है वो मौजिबा है। अगर पहला कजिया जो है वो मौजिबा है तो दूसरा कजिया भी मौजिबा होगा। और अगर पहला कजिया सालिबा है तो दूसरा कजिया भी सालिबा होगा। इस दूसरे उल्टे कजिए को पहले कजिए का अक्स मुस्तवी कहेंगे। जो नया कजिया मिलेगा उसे अक्स मुस्तवी कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अभी जो हमने पहले देखा वही एग्जाम्पल यूज होगी। अक्स मुस्तवी, अक्स मुस्तवी में हर इंसान जानदार है। इसका अक्स अगर आप इसका उलट निकालोगे, अक्स मुस्तवी में हमेशा बाज आएगा। जो अक्स निकालोगे, ये तो एक एग्जाम्पल है। अब इसका अक्स निकालना है हमें। अक्स क्या होता है इसमें देखो, इंसान है मौजू, जानदार है महमूल। अब इस महमूल को इस मौजू की जगह पर रखना है और इस मौजू को महमूल की जगह पे रखना है। तो चलो रखते हैं, अभी इस जगह को खाली छोड़ते हैं। यहाँ पे जानदार मौजू की जगह पर आया, महमूल की जगह पे आएगा इंसान है। अब देखो, हर इंसान जानदार है, ये लॉजिकली बात है कि हर इंसान जानदार है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी हर लिख दूं, हर जानदार इंसान है, तो ये लॉजिक गलत होगा, क्योंकि सारे जानदार इंसान नहीं हो सकते। उसमें से कुछ जानवर हैं, कुछ परिंदे हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं। तो हर की जगह पे मुझे चेंज करना होगा, यहाँ पे आएगा बाज। बाज यानी कि कुछ। समझ में आया? अक्से मुस्तवी बनाने का जो तरीका है कुछ नहीं है, बस सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मौजिबा है तो दूसरा भी मौजिबा बनेगा। अगर इसमें जुजिया का अक्से मुस्तवी है, मौजिबा जुजिया है, जैसे अगर पहली लाइन में है बाज इंसान जानदार है, बाज इंसान जानदार है, तो दूसरी लाइन भी सेम बनेगी, बाज जानदार इंसान है। बस ये दोनों चेंज होगा और ये बाज वहीं पर रहेगा। तीसरा है सालिबा कुल्लिया का अक्स मुस्तवी। कोई इंसान पत्थर नहीं, सालिबा का मतलब था जुदा होना। कोई इंसान पत्थर नहीं, इसका अगर आप अक्स निकालोगे तो कोई पत्थर इंसान नहीं। नहीं, नहीं, दोनों कजियों में सेम चीज आएगी। ये समझा बेटा दानिश? अक्स मुस्तवी। अब अक्स नकीज देखते हैं। वो है अक्स नकीज, वो कजिया है या वो अक्स है, इसमें मौजू और महमूल दोनों की नकीज लेकर। नकीज का मतलब होता है, बताओ सच्चा या झूठा। मौजू की नकीज को महमूल और महमूल की नकीज को मौजू। मौजू, इसकी नकीज को क्या बनाएंगे, मौजू की नकीज को महमूल बनाएंगे। इसी तरह महमूल की नकीज को मौजू बनाएंगे। इसमें दो नकीज होती है और ये इस तरह होगी, जो मौजू है और जो महमूल है दोनों की पिछली सच्चाई बाकी रहेगी।
जो पहला कजिया रहेगा उसकी सच्चाई बाकी रहेगी। जैसे हर इंसान जानदार है, हर इंसान जानदार है। अगर इसका नकीज, नकीज का मतलब होता है उल्टा। इंसान का उल्टा क्या बनेगा? नकीज का भी मतलब होता है उल्टा। इंसान का उल्टा बनेगा गैर इंसान। जैसे जिंदा का उल्टा बनेगा मुर्दा, वैसे ही इंसान का बनेगा गैर। तो यहाँ पर गैर यूज होगा। अब इसकी अगर मैं अक्स बनाऊं, इसका अक्स बनाऊं तो कैसा बनेगा? हर गैर जानदार। क्योंकि मौजू की जगह पर मुझे महमूल लेना है। ये है मौजू, इंसान मौजू है। इसकी जगह पर मुझे महमूल क्या है? जानदार। तो हर गैर जानदार गैर इंसान है। समझ गया बेटा? नतीज का मतलब दोनों का ही अपोजिट। इंसान का अपोजिट गैर इंसान, जानदार का अपोजिट गैर जानदार। जैसे लिविंग, लिविंग का नॉन लिविंग, वैसे ही जानदार का गैर जानदार। उर्दू में लिविंग नॉन लिविंग इस तरह से है। समझ गए? छोटा सा है, 5 मार्क्स में पूछ देता है कभी कभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा है ये। यहाँ पे आपका अक्स कंप्लीट हो गया है। अब हुज्जत की तकसीम देखते हैं। हुज्जत हमने पढ़ा था ना, हुज्जत या दलील किसे कहते हैं? जिसमें दो जानी पहचानी तस्दीकात से नई तस्दीक बने, उसे हुज्जत या दलील कहते हैं। अब उसी की किस्में देख लेते हैं। हुज्जत की तकसीम, ये 10 मार्क्स में आता है। इम्पोर्टेंट है, 10 मार्क्स तक के आ सकते हैं इसमें। इसकी डेफिनेशन तो हो गई। इसकी जो किस्म है वो 3 है, 3 किस्में हैं। पहली है कयास, दूसरी इस्तफरा, इस्तकरा है, और लास्ट है तमसील। ये मंतिक का लास्ट टॉपिक है बेटा। मंतिक को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया था ना, एक तो मंतिक था, इल्म मंतिक, और दूसरा है फलसफा, इल्म फलसफा। मंतिक व फलसफा ये मंतिक पोर्शन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कल से हम लोग इंशाल्लाह फलसफा स्टार्ट करेंगे। अब कयास को समझ लेते हैं। कयास क्या है? दो कजियों से मिलकर के बनेगा। इसमें भी दो कजिए होंगे, दो कजियों से मिलकर बनेगा। अगर उन कजियों को मान ले, अगर दोनों कजियों को मान लो तो एक और कजिया मानना पड़ेगा। ये पहला कजिया, ये दूसरा कजिया। अगर इसको भी मान लिया कि ये है, इसको भी मान लिया कि ये है, तो आपको एक और कजिया मानना पड़ेगा कि ये भी है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये तो डेफिनेटली होगा। इस तरह से आपको ये मानना होगा। अब उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले दो कजियों को कयास, अब इसको और इसको, ये एक कजिया दूसरा कजिया, इन दोनों कजियों को क्या कहेंगे? कयास कहेंगे। और जिसको मानना पड़े, इसको आप मान रहे हो ना, तो इसको आप क्या बोलोगे? कयास का नतीजा, कयास का नतीजा निकलेगा ये। एग्जाम्पल देख लो। जैसे हर इंसान जानदार है, ये है पहला कजिया। दूसरा कजिया देखो, हर जानदार जिस्म वाला है।
जैसे इसको आप एक अलग वे में भी समझ सकते हो कि अगर कोई इंसान घायल है, एक तो ये कजिया, दूसरा कजिया कि वो बाइक से गिरा हुआ है ना? बाइक लेकर के वहां पे खड़ा है या बैठा है, लेटा है, जो भी है, और दूसरा क्या है, वो घायल है। तो इससे आपको जो तीसरी बात समझ में आएगी, क्या समझ में आएगी कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ है। तो इसी तरह से कयास है कि पहला कजिया, दूसरा कजिया, तीसरा कजिया जो निकलेगा वो इसका नतीजा होगा। दो कजिया है, इन दोनों कजियों को क्या नाम दिया गया है? कयास बोला गया है। अब इसमें से तीसरा कजिया निकल के आएगा, जो कॉमन है वो लिख लो। हर इंसान, ये वाला कॉमन रहेगा, और यहाँ से जो कॉमन है इसको काट दो। काट दिया, क्या बच गया? जिस्म। जिस्म वाला है, ये जो नया कजिया निकल गया कि हर इंसान जिस्म वाला है, इसको बोलेंगे कयास का नतीजा। इसमें जो पहला कजिया है उसे कयास, और पहले दो कजियों को, तीसरे कजिए को कयास का नतीजा कहेंगे। कयास के पहले कजिए को मुकदमे अव्वल या सुगरा कहते हैं। पहले इस कजिए को क्या बोलेंगे? मुकदमे अव्वल या फिर सुगरा। दूसरे को बोलेंगे सानी या फिर कुबरा। और दोनों कजियों से जो मिल करके तीसरा कजिया बनेगा उसे हद औसत। जो चीज बार बार आती है, जैसे इसमें बार बार क्या आ रहा है? जानदार, इसे बोलेंगे हद औसत। उल्टा हो गया, ये है सोगरा, और यहाँ पे आएगा कुबरा। और जो रिपीट हो रहा है उसे बोलेंगे हद औसत, जो चीज बार बार रिपीट होती है। अब इसको जो कयास के जरिए नतीजा निकालने का तरीका है, एक तरीका होता है, वो भी देख लेते हैं। ये आपका कयास है। इसमें जो पहला कजिया हमने लिखा था उसे सोगरा बोला था पहले कजिए को, दूसरे कजिए को कुबरा बोला था। पहला कजिया क्या है? हर इंसान जानदार है। दूसरा कजिया क्या है? हर जानदार जिस्म वाला है। इसमें जो चीज रिपीट हो रही है उसे हद औसत कहा है। ये रिपीट हो रहा है, इसे हद औसत बोलेंगे। अब इन दोनों के नतीजे में जो चीज मिलेगी हमें, क्या मिलेगी? हर इंसान जिस्म वाला है। समझ गए? इसी तरह से कयास की शक्लें भी होती है अलग अलग। पहली शक्ल में देखो कयास की शक्लें। पहली शक्ल में जो हद औसत पहले कजिए में महमूल और दूसरे कजिए में मौजू हो तो उसको पहली शक्ल कहते हैं। वैसे कयास की शक्लें जो है वो ज्यादातर पूछी नहीं जाती हैं। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, है ना? कयास की शक्लें स्किप कर सकते हो, बट मैं आपको फिर भी एज अ एग्जाम्पल के तौर पे से समझा देती हूँ। जैसे देखो, हर इंसान जानदार है, पहला कजिया। दूसरा कजिया क्या है? हर जानदार जिस्म वाला है। इसमें हद औसत जानदार, यहाँ भी जानदार। नीचे जो बनेगा वो होगा हर जानदार जिस्म वाला है। तो जो लास्ट में आएगा ना, सॉरी, हर इंसान जिस्म वाला है, ये तो इसकी पहली शक्ल हो गई जो हमने नॉर्मल कजिए की, कयास की किसमें देखी थी, कयास किया है। तो ये तो पहले ही देख लिया, कॉमन है। अब दूसरी शक्ल में देखते हैं क्या होता है। हर इंसान जानदार है, फिर दूसरा कजिया ये बनेगा
कोई पत्थर जानदार नहीं, कोई पत्थर जानदार नहीं। इसमें हद औसत वापस से जानदार आ रहा है। तीसरा नतीजा क्या बनेगा इसका जो है, कोई इंसान पत्थर नहीं, जानदार कट, है ना। ये हर को छोड़ दो क्योंकि हर इंसान तो पत्थर नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई भी इंसान पत्थर नहीं है, कोई इंसान पत्थर नहीं। इसमें क्या होता है, जो हद औसत है ये दोनों कजियों में महमूल हो तो, महमूल यानी कि बाद में आए, मौजू इंसान है, यहाँ पे मौजू क्या है, पत्थर है, और महमूल जानदार है, तो दूसरी शक्ल कहती हैं इसे। अगर हद औसत दोनों कजियों में महमूल हो तो उसे दूसरी शक्ल कहेंगे। पहली शक्ल में क्या हो रहा था कि जो हद औसत था उसमें पहले कजिए में हद औसत महमूल था और दूसरे कजिए में हद औसत मौजू था। जब आप इसे खुद से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसी तरह से तीसरी शक्ल और चौथी शक्ल भी है, बस इसी का चेंज है, फिर मौजू कभी इधर आएगा, महमूल कभी इधर आएगा। बाकी दो शक्लें हैं, इसे जरा खुद से पढ़ना है ना। फिर कयास की भी दो किस्में होती हैं, एक इस्तिशनाई और एक है इस्तिकरानी। उस्तुकशनाई क्या है, पहली किस्म है इसकी। उस्तुशनाई में क्या होता है, ये भी दो कजियों से मिलकर के बनता है, दो कजियों से मिलकर बनेगा। पहला कजिया जो है वो क्या होगा, शर्तिया होगा, उसके दरमियान लेकिन लफ्ज आएगा। ये सब एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे सूरज निकलेगा तो दिन होगा, लेकिन सूरज मौजूद है, इसका नतीजा ये निकलेगा कि दिन मौजूद है। हुज्जत की दूसरी किस्म है इस्तफरा, कयास की दूसरी किस्म, कयास है इस्तकरानी। ये भी दो कवियों से मिलकर के बनेगा। इसका नतीजा जो है वो बस उल्टा हो जाएगा, जो हमने पहला कजिया देखा उसका अपोजिट हो जाएगा, फर्स्ट का उल्टा, अपोजिट। अब देखेंगे हुज्जत की दूसरी किस्म, इस्तकरा। इस्तकरा क्या होता है, किसी ग्रुप के बहुत से अफराद हैं, कोई एक ग्रुप है, उसके बहुत से अफराद के कुछ मखसूस हालात, उसमें बहुत सारे अफराद हैं, अब उनके कुछ स्पेशल हालात, मखसूस हालात को देखकर, कुछ लोगों के हालात को देखकर बाकी सारे पर सेम चीज लगा देना इस्तकरा कहलाता है। जबकि सारे लोग वैसे होते नहीं है, है ना। जैसे एक क्लास के किसी एक बच्चे ने गलती की तो वो पूरी क्लास खराब कही जाती है, उसी तरह इस्तकरा होता है कि अगर किसी ग्रुप के एक अफराद को या दो तीन मखसूस अफराद के हालात को देखकर बाकी सब पर भी वही हुक्म लगा देना इस्तकरा कहलाता है, जबकि सारे अफराद वैसे होते नहीं है। जैसे लखनऊ के बहुत से लोगों में नजाकत देखकर लोग कहते हैं कि लखनऊ के लोग जो होते हैं, हर आदमी वहाँ का, हर औरत आदमी वहाँ के लोगों के बहुत नजाकत वाले होते हैं। ठीक है। इसी तरह से तीसरी किस्म जो है वो है तमसील। तमसील क्या है, जिन असबाब की बुनियाद पर किसी चीज में कोई खास हुक्म हो, किसी वजह से किसी चीज पर कोई खास हुक्म लगे और वो वजह दूसरी चीज में पाई जाए तो उसे हम तमसील कहते हैं। अब जैसे शराब के बारे में कहा गया है कि ये हराम है, क्यों हराम कहा गया, इसकी कोई वजह है, इसीलिए इसे हराम कहा गया है ना।
तो हराम होने की वजह क्या है? यहाँ पे कॉज है, वजह। तमसील का मतलब है वजह। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि इसमें नशा लाने की कुव्वत थी। अब इसके जैसा शराब के जैसा दूसरा क्या है? भांग है ना? भांग में भी नशा लाने की कुव्वत होती है, तो इसलिए भांग को भी हराम कहा गया है। तो ये था आपका पूरा मंतिक का पोर्शन, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इतने में कोई डाउट है बेटा? ऐसा कोई टॉपिक है जो नहीं समझा है ना? कल ऐसा करना कि पूरा मंतिक देख लेना, उसमें से कोई डाउट होगा तो बताना, कल हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है दानिश?